Wow. No. Great. So we have next 14 minutes. Let's get started. Yes, sir. Your question. Good afternoon, ma'am. Ask one And quick. good evening to you too. Yeah, I want to ask one quick question. That what are some of biggest challenges you face in your career, and how did you overcome them? Hmm. The biggest challenges that I faced in my career were, um, okay, wow. The biggest challenges, if I have to really look into the challenges, I believe the first big challenge was to understand okay, I should not compare myself with others. Well, I was choosing my career to be into a software company, and then along with that into pageantry. Many of my friends were preparing for government schools, government colleges for their further studies, even government jobs. So there was a point in time when I had a little bit of self-doubt. Okay, am I doing the right thing? Maybe 5 years down the lane, they are going to be better than me, and be it in lifestyle, be it in achievements, be it in having respect in the society. So, what am I choosing? Is it right? So, the biggest challenge was to overcome a self doubt. That was one thing. Then, the second challenge was to have a plan, not just a plan A, but also a plan B and plan C. अगर ये चीज नहीं होती है, let's say, if my strategy for pageantry, like I'll give you the examples of pageantry because uh, I had nobody from my family who has been into pageants or modeling. I'm the first one to do so. And back then, unlike today, internet was not that commonly available. We had to go to cyber cafes and surf the thing, and internet ki speed bhi bahut slow hoti thi. So hardly there was an exposure to internet. So what I understood looking at the pageants and the modeling things that I've seen on TV, the walk is very important. The posture is very important. Communication is definitely very important. I also thought girls need to have long hair. If you will see the winning moment of Aishwarya Rai and Sushmita Sen, you will figure out that they have huge bun of what you say, they have a huge hair bun on which the tiara, the crown is placed. So all my life I was under the impression के बाल लंबे रखने होते हैं अगर आपको जीतना है तो. That's the minimal thing. So the second challenge is lack of information, but still whatever you know in the world, you bring your own plans to work out. So from a very early age, I started walking while keeping notebook on my head so that my posture is correct. Then thirdly, when this comes in, managing multiple tasks. When you are working on a goal, there is no one way to win it. Many a times it is with the planning, many a times it's with the strategy, many a times it's with the effort. Sometimes even you have to learn a new skill. You may not be knowing it, and you have to learn a new skill. Sometimes it can be overcoming your fear. Overcoming your fear is not just about communication alone, it is also about wearing a dress. So when you go into pageants, suddenly, hum ghar pe, like coming from a very simple hometown family and also very simple neighborhood, wearing short dresses or wearing gowns was not a part of my wardrobe. So when I walked on those pageant, I'll say the stages, walking with grace and being confident in short dress was also something I have to train myself that I'm looking good, I'm walking right, this is the way to wear. So these are the things I would say they have been the challenges. And how did I come over it? I practiced, I studied a lot, I worked upon that if plan A is not working, then B and C. And very simple thing. And I believe everybody has said it, and I will be no new person to say it. You don't believe in giving up. If you have made up your mind you want it, you have to make it happen. The attitude of you fail, that is natural. You learn from that failure and you bring out what new can be done. Where did I feel? ये तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता कि तुम कहाँ हारे थे या तुम कहाँ चूक गए थे. Lastly, if ever possible, if you can have a good teacher in life, focus on that teacher, and many a times teachers really guide you well. So though I did not have much of the mentors in my life, I learned it on my own most of the time. But I would always advise, if you can figure out a good mentor, nothing like it. Thank you, ma'am.
You're welcome. Hello. Hello. Good Hello. evening. I am Good Anamya. evening. I'm from sixth standard. So the question is, how do you handle pressure and tight deadlines? How do I handle pressure and tight deadlines? Um, Ananya, when I work, this is my way. I strongly believe that time is the most important element of life, more than money and more than anything. Apart from time, one thing that is maybe, no, actually, no. The most important thing in life is health. If you are healthy, then you can make things for, like, you can have time for many things. If you're not healthy, then your time gets consumed in recovery. So the most important thing in life is health. Once you have the health sorted, then comes your time. So how do I handle time under, like, how do I handle stress conditions, especially when the things are on the strict deadlines? um One simple, actually, two two ways you can do it. एक एक काम करिए, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाइए ऐसे अपनी कॉपी में, ऊपर से एक, कैन यू डू इट अलोंग विथ मी एज आई टेल यू? हाँ, तो बनाइए एक ऐसा ऊपर से नीचे, और उसको बीच में से स्क्वायर काटते हुए, सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऐसे प्लस का साइन आना चाहिए। ठीक है। Yeah, done. जब ये कोऑर्डिनेट्स में, हाँ, कोऑर्डिनेट्स पढ़ने आ गए ना, अब देखो कोऑर्डिनेट से लाइफ कैसे सॉल्व होती है। जो आपका लेफ्ट में टॉप मोस्ट है ना, उस पे लिखो अर्जेंट इंपॉर्टेंट। अर्जेंट, URGENT, अर्जेंट। और उसके साथ लिखो इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, अर्जेंट इम्पोर्टेंट। ये आपका उस स्क्वायर में पहला ब्लॉक होगा। जो दूसरा ब्लॉक है, यहाँ पे होगा अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। तीसरा, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। और लास्टली, नाइदर इम्पोर्टेंट नॉर अर्जेंट। Neither important, NEITHER, neither important nor urgent. Knowledge. So, Amya, what I do is, इसे हम कहते हैं टास्क मैट्रिक्स या टाइम डिवीजन मैट्रिक्स। ये मैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में भी बहुत से लीडर्स को भी सिखाती हूँ। ये एक ऐसी चीज है जो आप किसी भी एज से इस्तेमाल कर सकते हो टू प्लान योर थिंग्स। अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला जो आपका कॉलम है, मैं उसमें हमेशा वो लिख के रखती हूँ कि मेरे लिए अभी क्या जरूरी है। जैसे कि आपने कहा कोई प्रोजेक्ट है, उसकी क्लाइंट डिलीवरी भी है, और उसकी मेरे को डेडलाइन है जैसे 2 हफ्ते की, तो वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उसी टाइम पे कहीं पे ट्रैवल भी कर रही हूँ, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो मैं अपना टाइम पहले काम के लिए निकालूंगी। व्हाट आई डू इज, एवरी सिंगल डे मेरा दिन कैसे डिवाइड हो रहा है, मुझे कौन कौन से टास्क करने हैं, मैं इन 4 खानों में लिख देती हूँ। ब्रश करना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। नहाना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। खाना खाना अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पर ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तीसरे में जाता है, उसमें भी तो टाइम लगता है ना। और उसके बाद फिर लास्टली, जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, मोबाइल पे इंस्टाग्राम चेक करना, यूट्यूब चेक करना, उस पे कितना टाइम वेस्ट कर रही हो। ठीक है। और अर्जेंट इंपॉर्टेंट में, अर्जेंट है कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कोई चीज सीखनी है, आपको कोई नई स्किल पकड़नी है, तो वो अर्जेंट है। हो सकता है वो आगे चल के उतनी इंपॉर्टेंट ना रहे आपके लिए, पर अभी क्योंकि उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो सीखना है। आम्या, व्हाट यू डू, पहली बात, एम आई स्पीकिंग योर नेम करेक्टली? इट्स आम्या, राइट? No, Anamya. Anamya, thank you. So Anamya, when you divide this, you get an understanding कि आपका पूरा दिन में आप कहाँ कहाँ टाइम यूज कर रहे हो। दिस हेल्प्स कि आप अपनी डेडलाइन टाइम से मीट करो। सेकेंड थिंग, जब आपको पता होता है कि आपका एग्जाम लेट्स से 2 फरवरी को है, तो आपके दिमाग में वो एग्जाम 1 फरवरी को होना चाहिए। आपके दिमाग में वो नहीं होना चाहिए कि 2 फरवरी तक का टाइम है।
जब आप उसे 1 फरवरी तक रखेंगी, आप उसकी तैयारी भी उतनी ही तेज करेंगे और आपको रिविजन का भी टाइम मिलेगा। सेम चीज जब लाइफ में भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो उसकी एक डेडलाइन होती है। आपकी नजर में वो डेडलाइन एटलीस्ट 2 या 3 दिन पहले आ जानी चाहिए। इससे होता क्या है, आपको एक टाइम गैप मिल जाता है। लास्ट मोमेंट पे अगर कोई चीज कम रह गई या आपको और बेहतर भी करनी हुई, तो इट गिव्स यू द टाइम विथ कि आप वो चीज कर सके। दैट इज हाउ आई मैनेज थिंग। प्रेशर के लिए अगेन, दिस इज देयर, अगर बाय चांस कभी बहुत ही प्रेशर फील होता है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, आई डू लेट माई सेल्फ क्राई आउट। मैं रो लेती हूँ। अगर मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा होता है, नहीं समझ में आ रहा था, आई डू क्राई आउट। और फिर मैं एक ही सवाल पूछती हूँ, एट दिस मोमेंट मेरी कैपेसिटी में, मेरे कंट्रोल में और मेरे इन्फ्लुएंस में मैं क्या क्या कर सकती हूँ इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। मैं वो सारे सॉल्यूशंस लिखती हूँ और उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना शुरू कर देती हूँ। मैं ये बहुत स्ट्रांगली कहूंगी, हो सकता है कि जब आप ये प्रोसेस लगाए आपको 100% रिजल्ट ना मिले, लेकिन आप सक्सेसफुल जरूर रहोगे, आप फेल नहीं होगे। I think this will really help us when we feel stuck, and for people who procrastinate, I think this will be really helpful because anyone who has ADHD or anyone who suffers with time management or anything like that, I think it will really help them because usually their thoughts are like, oh, I have to do this, oh, I have to do that. So I think this will really help them sort it out. Thank you. नहीं नहीं, it's important what you are saying, you're most welcome. So write down things. You really want to manage your time, you really want to handle the pressure things, write down. अच्छा, there is one very amazing thing जो इन्होंने कही है, जेफ बेजोस ने। You feel stressed about the things you know you can accomplish, but you don't do it because of procrastination. तुम्हारे अच्छा, तुम में से कोई भी एस्ट्रोनॉट बनने के लिए फिक्र करता है कि मुझे स्पेस में जाना है, कल मेरा हवाई जहाज उड़ जाएगा, लेकिन इस बात का जरूर फिक्र करता है कि मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, टीचर क्या कहेगी। जो आपके कंट्रोल में है, जो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जिस पे आपका बस चलता है, जब हम वो काम नहीं कर रहे होते अच्छे से, इट क्रिएट्स स्ट्रेस इन आवर माइंड कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, लेकिन समहाउ मैं नहीं कर रही हूँ। तो आपको स्ट्रेस आता है। आपको उन बातों का कभी स्ट्रेस नहीं आएगा जो आपके दिमाग में वो पता है कि वो आप नहीं कर सकते हो या आप अभी उसको करने की नहीं सोच रहे हो। सो हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्यों प्रेशराइज हूं और मैं क्या क्या कर सकती हूँ जो मेरे कंट्रोल और इन्फ्लुएंस में है, एंड यू विल ऑलवेज गेट द सोल्यूशन। Thank you so much. Thank you. You're welcome. The last one. Hi. Hello. Good evening, ma'am. My name is Ishika and I'm from Standard 7. Hello, Ishika. First of all, I cannot resist saying that you appear to be the perfect woman I've ever seen, and I really look up to you, be it in the matter of looks, in matter of confidence or academics, everything. Thank you. Thank you. I'm absolutely humbled. Thank you so very much for the compliment. You made my evening. And my question I would like to ask that if you ever felt demotivated or that you couldn't live up to the dreams of your parents or peer group, and what would you advise to someone who felt the same? Hmm. You have touched the most, I believe, the most painful thing of my life. Ishika, when I was in 7th standard, I was 14 years old, was the time I started writing about myself that I will be Miss Universe. My dream or goal was very clear. I wanted to be Miss Universe for the year when I would be old enough to achieve it. Before that, only two women have won that title. One was Sushmita Sen in 94, second was Lara Datta in 2000. So I was very determined that I will be the next person to bring that crown and glory to India. मेरा ये गोल रहा है। इसी के लिए मैंने pageantry और modeling पर pursue करा था। सो व्हाट वाज अंडर माय कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस, तब मैं स्कूल में थी तो मैं मेरी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर, प्रेजेंटेशंस पे, पब्लिक फोरम्स पे बोलना, डिबेट करना, रीड करना, मैंने अखबार बहुत पढ़ा है। बिकॉज पैजेंट्स में आपसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। आपका जिंदगी को लेके नजरिया क्या है, आप अगर आप आज एक क्राउन जीत जाती हैं तो आप दुनिया के लिए ऐसा क्या करेंगी जिससे दुनिया बेहतर हो सके। So unless
यू रियली हैव इट इन योर हार्ट, यू रियली कैनॉट फेक इट कि मैं ताजमहल बना दूंगी या मैं बच्चों की पढ़ाई करवा दूंगी, नहीं, यू शुड रियली मीन इट वॉट यू वॉन्ट टू डू. सो आई बिकेम माई ओन कोच फ्रॉम अ वेरी यंग एज. And by the time I completed my 12th standard, my parents, because we come from a very strong academic family, तो मेरे पेरेंट्स ने इंसिस्ट करा था कि पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी. मॉडलिंग का या पैजेंट्री का करियर श्योर नहीं होता कि आपको उससे पैसा आएगा, और सर्वाइवल के लिए एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए मनी इज इम्पॉर्टेंट. सो पहले पढ़ाई पूरी करिए, हैव योर ओन नॉलेज, नॉलेज इज पावर, एंड देन यू स्टार्ट अपियरिंग इन द पैजेंट्स. पैजेंट्स एक तरह से ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे आप लोगों के लिए, जैसे हम हर साल एग्जाम लिखते हैं, वैसे ही हर साल एग्जाम्स होते हैं ब्यूटी पैजेंट्स के, एंड आप कोई ना कोई उसमें विनर होता है. वो मिस इंडिया हो सकती है, मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, एंड मेनी अदर टाइटल्स, सो ऑन सो फोर्थ. सो देन आई फोकस्ड ऑन कि ठीक है, अब मुझे इंजीनियरिंग पूरी करनी होगी. सो अगेन माई ड्रीम वॉज डिलेड फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. माई which started from the age of 14 now was postponed to the age of 23. There was a good gap. बाकी आप लड़कियों को देखती हैं तो वो 17-18 साल की उम्र में आ जाती हैं, बट अगेन आई हैड टू वर्क द लिटिल एक्स्ट्रा बिकॉज आई वांटेड टू बी academically strong. So it became on 23. My first pageant that I gave was when I was 24 years old, and the bandwidth is for 4 more years. The last you can appear in a pageant is 28. That's your age limit. Pageants में age limit होती है इंडिया में. आप 28 के बाद appear नहीं हो सकते हो, especially Miss India के लिए. That's the age limit. So within the 4 years, I appeared 8 times. हर साल में दो होते हैं, तो 2 बार इन समर्स एंड विंटर्स. एक आपको जून जुलाई में मिलता है मिस इंडिया का, और एक होता है दिसंबर में मिस डीवा का. सो मैंने दोनों में compete करा है. सो गिवन द मैथमेटिक्स, 4 2 8, मैं 8 टाइम अपेयर हुई हूँ, और मैं 8 बार फेल हुई हूँ, all 8 times. The last time when it happened was back in 2019. It was 8th of August. I distinctly remember. Miss India competition ने pageant host करने के लिए ही मना कर दिया, ये कह के कि हमारे पास इस बार resources की कमी है. And that was my last chance to appear and fulfill the dream जो मैंने 14 साल की उम्र से देखा था, और जिसके लिए मैंने 14 साल काम किया था. And in that duration, आप विनीत वगैरह दोस्त हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं कहीं घूमने नहीं जाती थी, मैं पार्टिंग नहीं करती थी किसी की तरह. मेरा स्केड्यूल बहुत फिक्स होता था. सुबह 5:30 बजे उठना है, 6 बजे जिम, 9 बजे ऑफिस, 6:30 बजे वापस घर, 7 बजे से जिम, फिर 9 बजे तक जिम, फिर खाना खाना है, सो जाना है, वीकेंड्स पे काम करना है, पैजेंट्स की तैयारी करनी है, हील्स पहन के वॉक करने की प्रैक्टिस करनी है. मैंने अपने 7 साल जो मैंने जॉब करा, उसके साथ मैंने इस पे पूरी मेहनत करी है. और लास्ट चांस जब था मेरी लाइफ का, तो मिस इंडिया कंपटीशन ने बस एक ईमेल रिलीज कर दिया कि हम ये कंपटीशन इस साल करेंगे ही नहीं. तो क्या सपने पूरे होते हैं? हर बार नहीं होते हैं. क्या आपको इस बात का बुरा लगना चाहिए? लगता है, बिल्कुल लगता है. एंड what I did was, so I come from a Muslim religious background. It was around 5:30. मेरा कमरा 17th फ्लोर पे था. आई कुड सी द सन गोइंग डाउन. शाम ढल रही थी. थोड़ा पोएटिक लग सकता है, पर मुझे लगा था कि अब मेरे ख्वाब भी ढल गए. आज की शाम खत्म हुई और मेरे ख्वाब पूरे मतलब रह गए. मैंने जाके नमाज पढ़ी थी, और मैंने खुद से ये वादा करा था कि इसके बाद जिंदगी में अब जो करूंगी वो इससे भी कमाल करूंगी. सवाल ये है, मुझे मिस इंडिया का खिताब क्यों जीतना था? क्या वजह थी? मुझे एक्टिंग का शौक है, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना था. तो अगर मैं मिस इंडिया नहीं बनती तो क्या मैं एक्टर नहीं बन सकती? बन सकती हूँ. मुझे बच्चों के लिए काम करना पसंद है, मुझे एजुकेशन फील्ड में काम करने का शौक है. तो अगर मैं मिस इंडिया बनती हूँ तो मेरे इन्फ्लुएंस से मैं बहुत से बच्चों के लिए कर पाऊंगी. ठीक है, हो सकता है ये ख्वाब पूरा करने में 5 की जगह 8 साल लग जाए, 10 साल लग जाए. पर क्या अगर मैं मिस इंडिया नहीं बनती हूँ तो क्या ये ख्वाब पूरा नहीं होगा? होगा. तीसरा, मैं मॉम डैड को बहुत प्राउड फील करवाना चाहती थी, और मैं हिंदुस्तान का नाम बहुत रोशन करना चाहती थी कि मैं वो तीसरी इंसान हूँ जो मिस यूनिवर्स का टाइटल लाई है.
तो क्या अब दुनिया में ऐसी कोई वजह नहीं रह गई जो मैं जीत सकती हूँ और अपने देश को अपने पे नाज करवा सकती हूँ? ऐसा भी नहीं है। मैंने अपनी नमाज अदा करी, मैंने अपने सवाल पूछे, मुझे जवाब मिले, और फिर उसके बाद मुझे विनीत मिले कि उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए तो हम साथ में करेंगे ना। एंड आई वाज लाइक, अगर आपकी शिद्दत होती है तो रास्ता बदल सकता है, मंजिल मत बदलो। यू विल ऑलवेज मेक अ कम बैक। Thank you, ma'am. That would really help me a That was very emotional, sentimental. While I heard you say or talk about your experience when it came to your parents telling you not to go, and then you getting an email saying that they cannot post it when it was your last chance. I'm really debating if you got a chance to go back to the day and choose between the joining date of Infosys and going to the audition, what would you choose? Since you said we should not have regret about it, even though it hurts. So I'm really debating what would you choose? Would you still go to Infosys and Srishti, have interestingly, if you will Google, back in 2015, the day of audition was 7th of December. And uncoincidentally, that was my joining date in the office as well. yeah, So you I know, had to choose whether to go for the audition or to go for my job. See, Srishti, for I come from a very simple family. Our value system is high, but the simplicity in the family is extremely simple. तो उस टाइम पे इफ आई लुक बैक कि मैंने वो डिसीजन लिया एंड आई हैव टू डिबेट कि मैं पैजेंट में जाऊं या मैं इसमें अपनी नौकरी पे जाऊं, आई रियली सैट डाउन। और तब तक मुझे पता नहीं था, बाय द वे, अगर आप उस दिन मैंने उससे आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सिखाती हूँ और जो मैंने सीखी वक्त के साथ। आई ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, बाय द वे। आप में से जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर आपको जिंदगी में कभी भी ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, कुछ बेहतर होना चाहिए था, एक बार जो हो गया उसे हो जाने दो। वक्त लेकर के बैठो खुद के साथ और एक बार सोचो कि क्या हुआ था और अभी क्या है। तुम्हें जो फर्क समझ में आएगा ना, तुम्हें समझ में आएगा कि वो क्यों होना जरूरी था, और उससे आप कैसे एक अच्छा इंसान बने हो, आप एक स्ट्रॉन्गर इंसान बने हो, आप ज्यादा निर्मल हो गए हो, आप ज्यादा, कहते हैं ना, कुछ भी कर जाऊंगा, डर हट गया है। हार का डर हट जाता है आपके मन में से कि ये संभाल लिया था तो वो भी संभाल लूंगी। तो आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है, और जिंदगी में सबसे ज्यादा खुद के ऊपर यकीन होना जरूरी है। बाकी चीजें हो जाती है। उन लोगों के लिए भी जिनके हाथ पैर नहीं रहे, वो पैरा ओलंपिक्स इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो खुद पे भरोसा नहीं छोड़ते, उनके हाथ पैरों पे उनका यकीन नहीं था, वो तब भी जीतते हैं। तो लिटरली सबसे पहले आप याद हो जब, और सच्चाई ये है, चाय की पत्ती की तरह है हम, गर्म पानी में नहीं डालोगे रंग नहीं निकल के आएगा, तो जिंदगी में गर्म पानी आना जरूरी है, आपको अपना रंग तभी दिखेगा। इससे कोई नहीं बचा सकता, ये होना जरूरी है। तो नेक्स्ट थिंग बीइंग कि अगर मुझे उसमें से चूज करना पड़ता, जितना मैं समझ सकती थी सृष्टि, मम्मी पापा को उस बात पे ज्यादा नाज था कि आप इन्फोसिस में जा रहे हो, आप कैंपस प्लेस्ड हो। अगेन, जैसे कि मैंने कहा, हमारे यहाँ पे सब पढ़ाई में रहे हैं, नौकरी में रहे हैं, तो मैं अपने फैमिली में पहली इंसान हूँ जो कैंपस प्लेस हुई थी। एंड एवरीबडी वॉज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इट कि और एक कैंपस में हो गई है, इन्फोसिस में हो गई है, शी इज द फर्स्ट गर्ल टू मेक इट हैपन। आई डिड नॉट वांट टू टेक अवे दैट हैप्पीनेस फ्रॉम देम। दूसरा, आप पैजेंट के उसके लिए जा रहे हो, क्या कहते हैं, सिलेक्शन राउंड के लिए, आपने क्लियर नहीं कर दिया है। अगर मैं क्लियर कर चुकी होती और टॉप 30 में आप हो, जिसमें आप फिर फाइनली नेशनल लेवल पे compete कर रहे हो, तो मैं इस बात का स्टैंड ले लेती कि मैं अभी नौकरी छोड़ रही हूँ, देखो मैं टॉप 30 में आ चुकी हूँ। लेकिन अभी मुझे कंपटीशन, 7 दिसंबर को मेरा कंपटीशन ऑलमोस्ट देश की 7.5 लाख लड़कियों के साथ था। सो एक जगह मैं ऑलरेडी जीत चुकी थी जहां मेरी ज्वाइनिंग थी, और एक जगह मेरा कंपटीशन शुरू भी नहीं हुआ था। मैंने मेरी जीत चूज करी। जब आप जीत चूज करते हो तो आपको और आगे जीतने का विश्वास बनता है। आप बहुत ज्यादा हारते रहोगे ना तो सेल्फ डाउट आने लगता है कि यार ये होगा भी या नहीं होगा। तो आई एम वेरी सेलेक्टिव अबाउट इट, मुझे मेरी जीत चूज करनी है। दूसरी बात जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आई थी वो ये, वंस आई बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मेरे पास ये फ्रीडम आ जाती है कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। आज आपके मॉम डैड या कोई भी इंसान डिसीजंस इसलिए ले पाता है क्योंकि उन्हें एग्जीक्यूट करने में, अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, ड्रेसेस बनानी है, आपको
ब्यूटी पैजेंट्स के लिए आपको पार्लर जाना होता है, ग्रूमिंग करवानी होती है, हील्स पहननी होती है, या कोई क्लासेस भी अटेंड करनी होती है। तो रादर देन आप मॉम डैड को जाके बोलो कि मुझे भाई पैजेंट जीतना है, उसके लिए आप मेरा इतना पैसा इन्वेस्ट करवाओ, आप खुद पैसा कमाने लगते हो और आप अपने सपने में खुद फ्यूल करते हो। वो एक अलग ही जज्बा है जब आप इंडिपेंडेंट भी हो और आप अपने पैसे से अपने सपने पूरे कर रहे हो, और अपने आसपास हर इंसान को नाज होता है आप पे, रादर देन आप उनसे लेते हो और फिर आपको लगे कि यार मैं सही तो कर रही हूँ ना। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, दैट एनहांस माई कॉन्फिडेंस। एंड लाइक आई सेड, मैं बहुत कैलकुलेट करके चली थी, और ये एक एज स्पेसिफिक सपना रहा है। तो जब मैं जा रही थी इस चीज में, मुझे पता था मेरे पास 8 चांसेस हैं। अब 8 में कभी तो जीतोगे, मुझे थोड़ी ना पता था कि है ही नहीं। दैट वाज नॉट इन द कार्ड्स, दैट्स व्हाट डेस्टिनी एंड लक इज ऑल अबाउट। आपने तैयारी करी है, बट दैट वाज नॉट इन योर लक और इन योर कार्ड्स, तो नहीं हो पाया। लेकिन मैंने कैलकुलेट करा था ना, मेरे पास 8 चांसेस हैं। सो आई अपियर्ड इन ऑल दोज 8, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। बिकॉज व्हेन आई लुक बैक, मैंने कहाँ से शुरू करा था। आई हैव बीन अ टॉम बॉय, एंड जिस लड़की को हील्स में वॉक करना नहीं आता था, उसने ग्लैड्रैक्स जीता है। ग्लैड्रैक्स इज कमिंग। आप ऐश्वर्या राय, अभी इफ यू एवर गूगल व्हाट इज ग्लैड्रैक्स, ग्लैड्रैक्स इंडिया का सबसे बड़ा मॉडलिंग का कंपटीशन है। उसके विनर्स जॉन इब्राहिम, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता। अगेन, लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स जीता था, उन्होंने ग्लैड्रैक्स भी जीता था, और फिर मैंने भी जीता था। तो लारा तक जाने जितना सपना मेरा पूरा हुआ। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। कंगना रनावत उस अकेडमी से रही हैं, ऋचा चड्ढा उस अकेडमी से रही हैं, और ये लोग वो हैं जिन्होंने वो टाइटल नहीं जीता, और मैंने जीता। तो ये दिमाग में मैंने डाला था कि कंगना का भी कभी मन हुआ होगा ना, जब वो इस कंपटीशन में गई थी कि वो जीते, पर वो नहीं जीत पाई। तुम जीती हो, लेकिन शी डिड नॉट गिव अप ऑन हर ड्रीम्स, शी स्ट्रगल, एंड टुडे शी इज अ वेल स्टैब्लिश एक्टर। तुम भी अपने सपने के पीछे दौड़ो, तुम तो जीत चुकी हो। सो समवेयर यू हैव ऑलरेडी बीन अहेड ऑफ कंगना। अगर अब तुम उसके जितनी मेहनत करती हो, तो तुम उससे भी आगे निकल जाओगी। कंपैरिजन आई एम नॉट सेइंग इन द सेंस कि भाई तुम्हें चिढ़ या गुस्सा या प्राउड फील होना चाहिए, लेकिन एज अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि हाँ तुम में भी बात है। जब तक वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव हेल्प कर रहा है कि नहीं मुझ में भी बात है, बस मेहनत की जरूरत है और एक नए जोश की जरूरत है, आई बिलीव टिल दैट टाइम कंपैरिजन इज गुड। उतने तक ही रहना चाहिए। उसके बाद जिंदगी आपकी होती है, रास्ता और मंजिल भी आपके होते हैं, और कुछ चीजें सच में आपके लिए इसलिए तय कर दी जाती है क्योंकि वो आपके बेहतरी के लिए थी। ये आपको वक्त के साथ समझ में आता है। Yes, really. I don't even have words because that hits at a point so much, I'm speechless right now. I ऑल्सो also, देर इज वन मोर थिंग जो मैं अपनी पर्सनली, डू वी हैव टाइम, हमारे पास कितना वक्त है? you have to. ग्रेट। तो देर इज समथिंग, ये मैं कभी किसी मतलब मैं कहीं बोल नहीं पाई, और आज मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिला है। सो मैं ये आप लोगों के साथ बांटना जरूर चाहूंगी। जो कि मैंने आपको बताया कि बाय व्हेन आई वाज 28 अगस्त में वो लास्ट था, जब मिस इंडिया ने मना कर दिया था 2019 में। मई के अंदर इन 2019 में अमेरिका ने मिस यूएस से अपनी वो कर दी थी डिक्लेयर, उनकी मिस यूएसए जीत गई थी। जैसा कि मैंने हमेशा पैटर्न देखा है, मिस यूएसए, मिस वेनेजुएला हमेशा टॉप 3 पैजेंट विनर्स में होती हैं। उन वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड होती हैं, सबसे ज्यादा वेल रिहर्स्ड होती हैं, तो वो हमेशा टॉप 10 या टॉप 5 में तो होती हैं। तो क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी और मेरे पास कोई कोच नहीं था, मैंने इंस्टाग्राम पे मिस यूएसए को फॉलो करना शुरू करा कि वो क्या क्या कर रही होती है। जैसे लड़कियां अपने बारे में डालती रहती है, आज मैं इतने घंटे रनिंग पे गई हूँ, आज मैंने इतनी देर जिम करा है, आज मैंने ये खाना खाया है, मेरे कोच ने ये करवाया है, मैंने डेंटल हेल्थ के लिए। आपको पता है पैजेंट्स में स्माइल करेक्शन तक किया जाता है, दांत एकदम सीधे करे जाते हैं, उनको वाइटनेस दी जाती है, बहुत काम किया जाता है। उनका ये भी आया था कि आज मेरे डेंटल करेक्शन का हुआ है, तब से मैंने डेंटल और ओरल हेल्थ को और सीरियसली लिया कि ठीक है अभी मेरे पास डॉक्टर नहीं है, पर ब्रश दोनों टाइम करना ही करना है। मंजन करो कुछ भी करो, बट करो, तुम्हारे हक में जितना है, तुम्हारी कैपेसिटी में जितना है उतना करो। एंड मैंने यही कहते हैं ना, एक फिर आपको कई बार कहते हैं कि आप अपने मन से सोचो, ध्यान करो, तो आपको वो चीज मिलेगी। मैंने यही ध्यान किया था कि ये लड़की को हराना है, ये पैजेंट में मिलेगी मिस यूनिवर्स के, तुम इंडिया से जाओगी, ये यूएस से आएगी, ये जरूर मिलेगी तुम्हें। और तुम्हें इससे बेहतर बनना है तो अभी से फॉलो करो लोग इन्हें क्या क्या सिखा रहे हैं, तुम अपनी तैयारी साइड बाय साइड वही लेवल पे कर सकती हो। इसलिए मैंने जिम दिन में 2 बार कर दिया था। तो ये
फर्क समझो, यहाँ पे मैं अपनी नौकरी भी कर रही हूँ और मैं मिस यूएसए की विनर के साथ उतनी हार्डवर्क भी कर रही हूँ। चॉइस नहीं होता। अगर आपका सपना उतना बड़ा है तो आप अपने हार्डवर्क के ऊपर सवाल नहीं कर सकते कि यार ये मैंने काफी कर दिया। वो काफी तब तक होना चाहिए जब तक बिल्कुल थक के चूर ना हो जाओ कि इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, यही था बस। और उसको करने में मजा आता है, बहुत मजा आता है। सो फाइनली 2019 का जब पैजेंट हुआ तो वो टॉप 3 में रही थी। उनका नाम है चार्ली। यू कैन एनी टाइम गूगल इट। ठीक है, 2019 हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया उस दिन, नहीं हुआ वगैरह वगैरह। 2020 में कोविड आ गया और फिर मैं अपने जॉब में इन्वॉल्व हो गई। फिर मैंने अपना, जो कि मैंने आपको कहा, फिर मैंने अपना नया लक्ष्य बनाया। और जो मैंने अपना नया लक्ष्य बनाया इन्फोसिस का, मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जीता इन्फोसिस में, दैट इज गोल्ड। और मैंने एक ही बार में गोल्ड और सिल्वर दोनों जीते ड्यूरिंग द कोविड टाइम, बिकॉज जो मैंने इनिशिएटिव करे थे पढ़ाई को लेकर के बच्चों के ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वो ग्लोबली इतने रिकॉग्नाइज हुए थे कि इन्फोसिस में आई वॉज रिकॉग्नाइज विद बोथ द हाइस्ट अवार्ड्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इट। जो मेरा सपना था, पढ़ाना है, जिंदगी और दुनिया को बेहतर करना है, तो रास्ता बदल दो, मंजिल नहीं बदलो। एंड आई वॉज रिकॉग्नाइज बाय माई कंपनी। सो आई एम स्टिल ऑन द मिशन ऑफ फुलफिलिंग माई ड्रीम्स। ये चीज होती रही। आफ्टर 2022 आई वॉज बैक होम इन 2023। मैं इंस्टाग्राम सर्फ कर रही थी और मिस यूनिवर्स का पेज मैंने फॉलो आज भी कर रखा था। और उस पे एकदम से न्यूज पॉपअप हुई, और ये आप सबको ध्यान से सुनना है। आज हम डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे चार्ली की। जो लड़की 2019 में जीती थी, वो 2023 में खत्म हो चुकी थी। शी कमिटेड सुसाइड व्हेन शी वाज 30 years old. Why? Some say because it was pressure. She could not handle the pressure. I don't think so. 28-year-old लड़की जिसने लॉ की पढ़ाई करी थी, जिसने खुद ने, उनकी स्टोरी मुझसे अलग नहीं है, उनका भी 7th या 8th अटेम्प्ट था। तो आई वॉज लाइक ओके, लेट्स डू इट टुगेदर। वो भी कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ। And when I read that she is no more and that she committed suicide and she jumped from 16th floor of the building, ऊपर मिस यूनिवर्स रह रही थी, नीचे मिस यूएसए रह रही थी, तो चार्ली was on the same building. She was having all the same career opportunities as of Miss Universe, but still she committed suicide. That day I realized one thing. कभी कभी हमें लगता है कि दूसरे की जिंदगी हमसे बहुत बेहतर है, पर हमें पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिंदगी में आप लोगों को भी ऐसा होगा कि लगेगा कि यार इसने तो, मैं नहीं कर पाई, देखो उसने कर लिया, उसे मिल गया। यू डू नॉट नो व्हाट प्राइस आर दे पेइंग फॉर इट। अब एट दैट टाइम बैक इन 2019 अगर कोई मुझे कहता है ना कि तुम चार्ली के साथ स्विच कर लो, हम तुम्हें मिस यूएसए का टाइटल दे देते हैं, मैं फटाक से कर लेती। लेकिन अगर कोई मुझे ये बताता कि 2 साल बाद तुम रहोगी ही नहीं जिंदा, तो उस टाइटल का क्या करना? क्या वो इंपॉर्टेंट रह जाता है? So, and these are real things. That's why I'm telling you date, time, everything. Should you ever want to study about her, you can. एंड लाइक आई से, मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में सुकून से बैठ के खुद से सवाल ज़रूर करती हूँ कि मेरे साथ ये हुआ था, इसके पीछे क्या अच्छा रीज़न रहा कि ये हुआ। और जब आप सही में अच्छे से सोचना चाहते हो तो आपको सही जवाब मिलते हैं। और जो मुझसे पूछा गया था कि मैम फिर आप हैप्पी कैसे रहते हो, आपको सच में समझ में आता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। जिंदा रहना, सेहतमंद रहना, मम्मी पापा का होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी नियामतें हैं टू स्टार्ट विथ। सो एवरी वन ऑफ यू सिटिंग आउट देयर, लाइफ बहुत अच्छी है। उसके अंदर चैलेंजेस आने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप बेहतर ही उनसे बनते हो। गोल्स बड़े रखो, अचीव करो। वहां नहीं पहुंचोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां से शुरू करा था ना उससे बहुत आगे होगे, ये बहुत अच्छी बात है। उस सफर में बहुत अच्छे लोगों से मिलोगे, बहुत कुछ सीखोगे। इट्स जस्ट लाइक, अगर तुम जैसे मान लो गोवा जाने का प्लान बनाते हो या देहरादून जाने का प्लान बनाते हो, तो ट्रेन से जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो या कार से जा रहे हो, एक्सपीरियंसेस अलग हो जाएंगे, पर मजा जरूर आएगा। तो अपने गोल जरूर रखना। रास्ते में लोग बहुत मिलेंगे अच्छे, जो दिल से आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं।
नेवर मिस ऑन दैट। एंड अगर फेल हो भी जाते हो तो गोल नहीं मिस हुआ, वो स्ट्रैटेजी फेल हुई। हम एक नई स्ट्रैटेजी बना लेंगे। I think that was very insightful. The roller coaster of advices and emotions, I'd say. Thank you for sharing. Yeah, thank you so much for sharing this with us. You're most welcome. Okay. So we have this rapid fire round. E. Okay. In one or two words. Not. Okay. Yeah. First question: who believes in you the most at the starting of your misparent or like Khushbu Azad, my elder sister. failure means dash to you now? A date gone wrong. Okay. Miss Grand India 2016 in one word. One word. Dream. Your lowest career moment? None. Always the beginning of the highest. So kabhi low hua hi nahi. It's always the beginning of the highest. Okay, now you have to choose between two options. Fear or self doubt? Which was harder? Was harder? Which was harder? Yeah. Stage fear. I never had doubt on myself. Okay. Corporate life or creative life? Blend of both. Two perfect strength or weakness? Two perfect strength and weakness. Or weakness. Strength, strength. My ability to see the good in people and the situation. That is one strength. The other strength is मैं सबसे अच्छी हूँ और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है। मैं इसके आगे ना सोचती हूँ ना सुनती हूँ। And that and my two weakness, well, weakness, I believe, if really have to be weak, a little better on time management. That is one thing I can become better at. And none, none. This is the only thing I can think of. No weakness apart from that. Spotlight or behind the camera? Sorry? Spotlight or behind the camera? Always in the spotlight, and I love to direct, so behind the camera as well. Okay. Maybe not a mistake. As in, you would like to learn it by trial and error, or would you have a mentor so you do not make a mistake at first place? Second option, avoid mistakes if possible. It will Okay, save next your thought. time and energy. Okay, heart or logic? Logic. We can go on. Titles or impact? Sorry? Titles or impact. You will rather go for titles or you will rather prefer impact? Impact. Impact will always get you the titles. Yeah. Impact will always generate the titles. If you are creating, I'll give you a quick example. Chacha Nehru, a politician became Chacha, National Chacha, and APJ, like Missile Man, Yeah. APJ Abdul Kalam. So you will always get the title. Work on the impact. Film or fashion? Why? Film or fashion? Film or fashion? Films. Why? Why would you choose Why? films? Because because that's a very expressive art in my understanding, and it's storytelling. I love Mhm. stories. Okay. Okay. A quote you live by. Life is like an ice cream. Eat it before it melts. Oh, nice. One word your parents used to describe you with. Rebellious. A rule you are proud of. A role am I proud of? As a human, I'm very proud of myself, Your definition which of fits in success. every other role that I have been titled with. Okay. Your definition of success. um, my definition of success is you have the passion and the craze to make it happen for yourself, and you decide the parameters of what victory is.
That's a